वो This है नहीं. conference will now be recorded. I guess he is not there. So not an issue. Let's start with the today's topic. Okay. So Sonali, Yes, sir. it is there. Now today, what we will be discussing relationships, right? हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है या फिर दो टेबल है, दैट इज पेशेंट एंड डॉक्टर. सो अभी मुझे क्या करना है, मैं डॉक्टर में कुछ डेटा डाल देता हूँ, डॉक्टर ऑब्जेक्ट में, राइट. पहले तो हम डॉक्टर, सोनाली, हैव यू प्रिपेयर्ड दैट डॉक्टर ऑब्जेक्ट? Yes. हैव यू क्रिएटेड? हाँ. Yes. सो इन डॉक्टर हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर? Wait. जस्ट चेक वंस. 6. Email you have six. What? Which are those email you have mentioned? Then Email, contact number, consultation fees, fax number, and specialist, specialist. and name of doctor. Specialist is what? Pick list or what? It is a pick list. हाँ. ओके. सो आई होप ये आपको सबको पता ही है कि कैसे ये सारे करने हैं. ये फील्ड्स हमने बनाए हैं डॉक्टर ऑब्जेक्ट में, राइट. ईमेल, ईमेल के टाइम पे आपको डेटा टाइप ईमेल लेना होगा. कांटेक्ट के टाइम पे आपको डेटा टाइप फोन लेना होगा, राइट. देन फीस के टाइम पे आपको डेटा टाइप करेंसी लेना होगा, राइट. स्पेशलिस्ट के लिए हमें डेटा टाइप पिक लिस्ट लेना है, और उसमें आप अलग, पिक लिस्ट मीन्स व्हाट, ड्रॉप डाउन लिस्ट. आप उसमें वैल्यूज डाल सकते हो, ऑर्थोपेडिक, राइट, या फिर ऑप्टिशियन, या फिर जनरल फिजिशियन, राइट. सोनाली, हाउ मेनी such values you have taken, such a pick list values? Near about 5 to 6. Okay, not an issue. So that's go to the this object, sorry, app, your application. So this is your first task for today. You have to create one more object named doctor, और उसमें ये 5-6 फील्ड आपको डालनी है. You have not added doctor object here. You need to add, right? Yes, I have add Hmm. doctor, Huh. but patient object is remaining to add in health Oh, management. Let's do it. okay. So just, you can add it from here also. One shortcut method is there. On the right hand side, all the students could, can you see this pencil symbol? Finally, go to that pencil. एकदम extreme right, वही लाइन में, पेशेंट के ही लाइन में, जो सॉरी डॉक्टर Yes, जो ऑब्जेक्ट है. हाँ. yes. Just click on that, But first I right? have created a tab, then I can add. हाँ. So you have created tab, right? Or you have not? I haven't it. Okay. Now So create. I'm creating. हाँ. Create the tab. So all the students must be aware of this all procedure, how to create the tab, how to create the object, how to create the fields, right? ये आपकी उतनी प्रैक्टिस अभी तक हो जानी चाहिए. ये तो एकदम बेसिक्स चल रहा है, राइट. सर, बोलिए. जो कंसल्टेशन फीस का फील्ड बनाना है वो फॉर्मूला बेसिस पर ही बनाना रहेगा ना? कौन सा? किसका? डॉक्टर का? यस सर. नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक आपके समझने के लिए है, वो फॉर्मूला नहीं है वो.
डॉक्टर खुद एंटर करके देगा कि मैं इतना कंसल्टेशन लेने वाला हूँ। वो ओके। नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, फिलहाल जस्ट आपके समझने के लिए एक डाला है। ओके। जैसे हमने इसमें हॉस्पिटल के सॉरी पेशेंट ऑब्जेक्ट में हमने फीस दिया था ना, तो फीस तो वो ओरिजिनल करेंसी फील्ड था। उसके बाद में हमने डॉक्टर शेयर और हॉस्पिटल शेयर इसका फॉर्मूला बनाया था। किसके ऊपर डिपेंड था वो? जो एक्चुअल पेशेंट से पैसा आ रहा था, पेशेंट जो फीस पे कर रहा था, राइट? सो हैव यू एडेड? Yes, sir. ओके, सो go to that object, sorry, application. Keep both the screen open, Sonali. In second tab, you can have in browser itself, you can have this that application. Yes, sir. So open that application. Yes. Now click on that. Now that both the objects are available, you could see all the students, right? Patient and doctor both are available, right? Now Sonali, click on that setup once, gear icon and setup. Okay. Now this is your setup tab, right? And one more is your object, that is application tab, right? नाउ देयर आर टू ब्राउजर में हम दो टैब्स खोल के रखना ही पड़ेगा हर बार जब भी आप डेवलपमेंट करोगे। एक रहेगा आपका होम पेज, मतलब ये वाला पेज, और दूसरा है आपका एप्लीकेशन जो आपका यूजर को दिखने वाला है। और आप काम कौन से कहाँ पे करोगे, तो ये सेटअप में आपका काम रहेगा मोस्टली, राइट? सो गो टू दैट मेन पेज, एप्लीकेशन पेज, Sir. right here. So that is how you have to work every time. Now uh, now go to that this that page, application page. Stay on that page only. Huh. Now create one doctor Uh, 1 second, sir. record. Huh. Create one doctor record. Here it is a specialist. So I have created data type as a pick list. So select as a dentist. You can have any value over here, but it should be number. Otherwise, it will throw some error. Okay. So this is the record that you have created. Okay. Now, uh, now what I have to do? Suppose, suppose I need to नाउ देयर कुड बी, ये जैसे हमने एक डॉक्टर का रिकॉर्ड बनाया है, राइट? हमारे टेबल में हजारों या फिर कम से कम 100-150 डॉक्टर का रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में विजिट करने वाले डॉक्टर कितने हो सकते हैं? इससे 100-150 के आसपास डॉक्टर रहेंगे। और पेशेंट, पेशेंट की तो गिनती नहीं रहेगी, राइट? सो मेरे पास कोई पेशेंट आता है रमेश कुमार, और रमेश कुमार बोलता है कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, मुझे डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है। सो रिसेप्शनिस्ट को क्या करना पड़ेगा? उसके बीच में कुछ सिलेक्शन उसको आना चाहिए। मतलब जैसे ही जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन, वो जो पिक लिस्ट था, पिक लिस्ट में एक ड्रॉप डाउन खुला, राइट? जैसे हमने स्पेशलिस्ट पे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन खुला, उसमें था डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियन, ऑप्टिशियन, ऑर्थोपेडिक, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज खुल गए। तो जैसे ही एक रमेश कुमार आता है और रमेश कुमार बोलता है कि मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है और मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उसको उसको रिलेट करते आना चाहिए। किसको?
रिसेप्शनिस्ट को कि भाई रमेश कुमार की अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के साथ ही फिक्स होनी चाहिए. फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डेवलप सम रिलेशनशिप, right? Now in Salesforce there are 5 different types of relationship. So today we will discuss two types, that is lookup relation and master detail relation. So दोनों ही हम यहाँ पे डेवलप करेंगे और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, राइट? सो लुकअप या फिर मास्टर डिटेल ये भी एक तरह का डेटा टाइप है. नाउ सोनाली गो टू दैट ऑब्जेक्ट मैनेजर होम पेज सेटअप पेज. राइट, सेटअप पेज सेटअप. Right. So here in the setup page, go to that your patient object. Right. Now यहाँ पे Excuse me, sir. yes tell me. Sir, I'm not able to log in into my account. Which account? Sir, the Salesforce. Sir, When you have created your account? उसमें sir, you say I got the email from HR. So अभी सर वो लॉगिन नहीं हो रहा है. No, HR तो का उसमें email वो सिक्योरिटी अलग क्वेश्चन है. में पूछ रहा है तुम्हारा बर्थ ऑफ डेट क्या है, बट वो आपको मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले पूछा था किसको इश्यू था, but nobody said anything, right? सर So stay in the call and जैसे यस ये सर. कॉल खत्म होने को आएगा तब हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, right? In the evening session, we will discuss. ठीक है सर. Okay. Now do one thing, Sonali. Yes. Please be on mute, other student. So here you have to create one field now. Now click on the Okay. field new. Yes. Right. Click on new. Yes. Right. Data So type. yes, if you can see here, there are different types of data types are available, right? जैसे फॉर्मूला है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग है, राइट? ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स के ऊपर आपने फील्ड्स भी बनाए हैं, right? इस डेटा टाइप्स के साथ. But now there are special data types are available. So now we just go to that lookup, show them Yes. the lookup. Here it is. So you could see that there is one additional data type is there, lookup relation. So हमें क्या करना है, पेशेंट हम कौन से ऑब्जेक्ट में है अभी हम, वी आर एट पेशेंट ऑब्जेक्ट एंड फॉर पेशेंट ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग वन मोर फील्ड, दैट इज उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, लुकअप रिलेशन, राइट? सो जस्ट सिलेक्ट दैट लुकअप एंड मूव टू द नेक्स्ट. राइट, उसका सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट रिलेशन रिलेटेड टू. अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि आपको लुकअप देना है. लुकअप मतलब एक तरह का रिलेशन है. ये बोल रहा है आपको किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन करना है, पेशेंट ऑब्जेक्ट का. तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन देना है इसका, डॉक्टर ऑब्जेक्ट के साथ. सो जस्ट सिलेक्ट द डॉक्टर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखने में आप यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस ड्रॉप डाउन, राइट? जितने भी आपने बनाए हैं वो भी दिखेंगे और सेल्सफोर्स ने खुद होके जो बना के दिए हैं वो भी दिखेंगे, राइट? सो अभी हमें किसके साथ करना है, डॉक्टर के साथ रिलेशन देना है. जस्ट सिलेक्ट डॉक्टर एंड नेक्स्ट. नाउ हियर अगेन लेबल देना पड़ेगा आपको. यू कैन कीप द सेम लेबल, वो बाय डिफॉल्ट एक लेबल आएगा. यू कैन कीप दैट एज जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है वो रख सकते हो या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू कैन कीप दिस नेम एज इट इज, तो आपको समझने के लिए इजी जाएगा. मतलब ये फील्ड का नाम आएगा. हाँ, ये जो लेबल आएगा वो फील्ड, जब आप फॉर्म भरोगे जैसे हमने फीस, डॉक्टर शेयर, हॉस्पिटल शेयर, वो जो नाम आ रहा था ना वो नाम ये लेबल से आएगा.
description if you wanted to have, then you can give it. Okay, all these things, all the remaining things are same, जैसे mandatory करना है नहीं है, right? Save. Next one, save. Create, Sonali, now create one more record in doctor object with other specialist. Like earlier it was dentist. Now select other specialist. Cardiologist. Hmm. Yes. Save it. Okay. So how many records are there now in our doctor object? Two records, right? Doctor object पे जाओ सोनाली. Main tab पे. हाँ. Right? Uh, you can click on this recently view. वो जो ड्रॉप डाउन है ना वहाँ पे और एक क्लिक करो. All doctors पे क्लिक करो. I guess there has to be two only. Hmm. Only two records are there, right? So now go to the patient object. Right. Go to the patient object. Now try to create one patient. Okay. Now here student, now what we have done till now, देखो आज हमने क्या क्या किया. एक पेशेंट के ऊपर लुकअप फील्ड बनाया, राइट? और वो लुकअप हमने किसके ऊपर दे दिया है? डॉक्टर ऑब्जेक्ट के पास दे दिया है, और उस फील्ड का नाम हमने क्या दिया है? डॉक्टर. सो ये जब वो फॉर्म भरेगी रिसेप्शनिस्ट, नाउ गो ऑन फिलिंग द फॉर्म, एंटर द Yes. नेम ऑफ सम पेशेंट. Go to that lookup, complete this form and stay on that lookup. Select some state and select some city also. This Hello. is lookup. So can you see this, all the students? Can you see that lookup field with name doctor, everybody? So now when you click on that lookup, तो वो क्या करेगा? जो भी डॉक्टर में जितने भी रिकॉर्ड है, Sonali, just click on that inside that lookup field, the text box, and show them that how the doctors are populating over there. Here it is. Two doctors record. Right. Sagar Patil and R. Badani. राइट. नाउ हमने कितने रिकॉर्ड्स बनाए थे डॉक्टर में? 2 रिकॉर्ड थे, राइट? सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, या फिर आपके डॉक्टर ऑब्जेक्ट में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स उनका दिख जाएगा. मतलब सागर पाटिल है या आर बदानी है. अभी नाउ हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड्स थे, राइट? सो वी कैन, नाउ द रिसेप्शनिस्ट नोज दैट इसको किसके साथ ये देना है. रिसेप्शनिस्ट बोलेगी सागर पाटिल वाज फॉर व्हाट, विच स्पेशलिस्ट, कौन सा Cardiologist. स्पेशलिस्ट है? कार्डियोलॉजिस्ट. तो सपोज उसको पेशेंट बोलता है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेना है, तो व्हाट रिसेप्शनिस्ट विल सिंपली डू, क्लिक ऑन दिस सागर पाटिल
select this Sagar Patil, Yes. right? And just click on save. Yes. Now, this is how the record is created. Now here you can see, you can there are two tabs now. ये दो, एक तो डिटेल पेज है, राइट? ये डिटेल पेज में आपको पेशेंट के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, राइट? उसका फीस कितना है, उसका डेट ऑफ कॉल, उसने कब कॉल किया है, राइट? उसका सिटी कौन सा है, राइट? ये सारे ही दिखेंगे आपको यहाँ पे। उसके साथ ही साथ उसके बाजू में, डिटेल के बाजू में एक रिलेटेड नाम का टैब भी है। Sonali, just go to that related tab. Yes. Huh. No related list to display. Okay, just go to the detail once. Just go to the details. Yes. Huh. Detail. Right. Now यहाँ पे डॉक्टर का टैब है, नीचे जाओ, डॉक्टर कहाँ पे हो, डॉक्टर का फील्ड। Yes. Right. Doc. Here you could see that doctor is allocated to this patient. Okay. Now go to the doctor tab. डॉक्टर के टैब पे जाओ। Yes. In doctor tab, go to the सागर पाटिल। इसको हमने पेशेंट अलॉट किया था ना, राइट? Yes. Yes. नाउ हियर ये डॉक्टर के सारे रिकॉर्ड्स है मेरे, या फिर वो सागर पाटिल का सारा डिटेल है, यहाँ पे नाम क्या है, उसका स्पेशलिस्ट क्या है, वो सारा ही डिटेल्स है उसका, राइट? नाउ गो टू द रिलेटेड टैब ऑफ दिस डॉक्टर। हियर यू विल से, No. हियर यू विल सी द पेशेंट that was allocated to this doctor. We have allocated No. to No. this doctor Yes. Yes, or sir. our other. So how come refreshed it once? Yes. Yes, can Now you see it's this? display. इसको, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है उसको। डिटेल पेज में आप जाओगे तो उसका सारा डिटेल्स दिखेगा, और उसके रिलेटेड टैब में जाओगे तो उसको सारे पेशेंट्स दिखेंगे कि भाई ये पेशेंट्स, इसको आज ये डॉक्टर को भी पता चलेगा। अभी मैं दूसरा पेशेंट यही डॉक्टर को बनाता हूँ तो यहाँ पे आएगा पेशेंट काउंट 2 आएगा ऑटोमेटिकली, तो डॉक्टर को ये दिखेगा कि भाई मेरे को 2 पेशेंट आज देखने हैं, उनका नाम ये है, या वॉट एवर इट मे बी, राइट? या फिर हम उसको ईमेल भी कैसे भेजेंगे वो भी आगे देखने वाले हैं, राइट? सो सोनाली, प्रिपेयर वन मोर पेशेंट रिकॉर्ड, क्रिएट वन मोर Yes, पेशेंट sir. रिकॉर्ड Yes. फॉर द सेम डॉक्टर ओनली। यही डॉक्टर को सेम रिकॉर्ड, सॉरी, दूसरा पेशेंट बनाओ। Yeah. तो ये आपका Yes. हियर, नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर आर 2 पेशेंट्स, और दोनों पेशेंट्स की डिटेल्स। अभी आप यहाँ पे उसके पेशेंट के नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पेशेंट के सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, राइट? तो ये तो हमने बहुत सिंपल केस लिया है कि उसका ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, बट हम ऐसे ही इसमें सारा पेशेंट का हिस्ट्री डाल सकते हैं कि वो लास्ट टाइम कब आया था, फिर उसको क्या क्या रिकॉग्नाइज हुआ है ना, उसका शुगर कितना था, उसका बीपी कितना था, 1 महीने पहले कितना था, 2 महीने पहले कितना था, तो वो सारा ही डिटेल्स वन क्लिक में डॉक्टर के सामने आ जाएगा, राइट? सो डॉक्टर को भी पूरा फाइल चेक करने की जरूरत नहीं है जो कन्वेंशनल पेपर पेंसिल मेथड से, राइट? सो वन क्लिक पे डॉक्टर को सारा डिटेल्स आएगा। नाउ हियर
doctor can see only few details. Why? Because we have created a very simple structure for the patient object, right? उसमें सिर्फ patient का नाम है, email है, phone number है, fees है, right? या फिर other details है. Okay, so that is how the relationship is created. Do you understand how to create the relationship? Lookup relation. Anybody having any doubt? No, sir. Anybody having? Okay. Now we will move to the next type of relationship. We will call it as a master detail relationship. So as like lookup relation, हम master detail भी बना सकते हैं. Now here, Sonali, create one more record in patient object. Yes, sir. But now this time, do not select any doctor in the doctor field, right? Do Okay. not select any doctor. अभी नया what Sonali is doing now here, she will be creating one more patient record, but इस time वो कोई भी डॉक्टर सिलेक्ट नहीं करेगी और पेशेंट रिकॉर्ड बनाएगी. देखते हैं क्या होता है. Save. Right? What did he say? So here we have created one more patient. हमने यहाँ पे एक और पेशेंट बनाया है, बट यहाँ पे हमने जो डॉक्टर का फील्ड था वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं एंटर किया, कोई भी डॉक्टर सिलेक्ट नहीं किया है, बट स्टिल वी आर एबल टू क्रिएट अ डॉक्टर सॉरी पेशेंट रिकॉर्ड. हम पेशेंट रिकॉर्ड कर पाए, राइट? दैट इज हाउ द लुकअप रिलेशनशिप बिहेव्स. नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज मास्टर डिटेल रिलेशन. उसको क्या बोलेंगे हम? मास्टर डिटेल रिलेशन. Now, master detail relation is very much similar to that of lookup. Lookup के जैसे ही है, but हम जब master detail relationship बनाएंगे, right? तो जैसे अभी हमने पेशेंट रिकॉर्ड करते समय डॉक्टर को सिलेक्ट नहीं किया, तो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट कर पाए, बट जब अगर वही वो लुकअप के जगह पे वो मास्टर डिटेल रिलेशन होता, then it is very very mandatory to select value or select at least one value for that record. आपको एक डॉक्टर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड सेव नहीं कर पाएंगे आप. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन lookup relation and master detail. Lookup is not a mandatory field, whereas master detail is a mandatory field. That is what the difference. Now Sonali, delete all the patient record, Yes, sir. or keep or keep all the patient record as it is. Now go to that Okay. object manager. एक ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ और पेशेंट ऑब्जेक्ट पे जाओ और एक मास्टर डिटेल बनाओ. Data type as master detail. Show first click on that master detail and stay on the same page only. Yes. So this is the master detail relation. You could see this. So just click on this or select that master detail and go to the next. Yes. Go to the next page. Now here select the object. Let us do one thing. We will be creating one more object over here, right? एक तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए अभी तक, या फिर सिंपली हमारे सिस्टम में कितने टेबल हमने बनाए? एक तो पेशेंट है और एक तो डॉक्टर है. अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से हॉस्पिटल ब्रांच.
और उसमें हम हॉस्पिटल के सारे डिटेल्स डालेंगे। लाइक एक हॉस्पिटल के अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल पिंपरी ब्रांच, या फिर हिंजवाड़ी ब्रांच, वाकड ब्रांच, या अकोडी ब्रांच, चिंचवड़ ब्रांच, या फिर दूसरे दूसरे ब्रांचेस हो सकते हैं, राइट? अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे। सो क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट सोनाली फर्स्ट called hospital branch. Okay. Create the tab and allocate that object to our application. Okay. देखो रियल टाइम में आप जब जाते हो ना, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट देर आर 60 से 70 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ द प्रोजेक्ट आई एम इन विच आई एम वर्किंग, दैट इज ऑल्सो हेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, राइट? दैट इज नॉट अ हॉस्पिटल बट इट्स अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट? और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचती है, राइट? सो बहुत माइनर लेवल पे उनके काम चलते हैं। जैसे मतलब कोई फार्मास्यूटिकल, यू नो दैट कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटी सी टैबलेट से लेके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तक उन लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट? सो वो सारे इक्विपमेंट का ट्रैक रखना है उनको, कि कौन सा किधर गया है, कौन सा बैच का कौन सा मेडिसिन कौन से मेडिकल मेडिकल तक पहुंचा है, ये सारा ट्रैक उन्हें रखना है, राइट? तो वो सारे डिटेल्स अलग 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 टेबल में रखते हैं, राइट? तो जैसे पहले क्योंकि उनके भी बहुत सारे ब्रांचेस है, अलग अलग प्लांट्स है, उनका प्लांट्स के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट है, उनके मेडिकल मतलब जो टैबलेट्स है उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट है, मतलब टैबलेट्स का सारा रिकॉर्ड अलग टेबल में सेव कर रहे हैं, मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है उसका अलग फॉर्म में रख रहे हैं, जो ड्रग्स है मतलब जिसके ऊपर कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा दे नहीं सकते, जैसे नींद की गोली है या फिर अलग अलग गोली है, ये गोली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा किसी को नहीं मिलता है मेडिकल में, तो उसका अलग रिकॉर्ड होता है, अलग टेबल होता है, राइट? जो इक्विपमेंट वो बेचते हैं, जैसे थर्मोमीटर हो या फिर बीपी शुगर मेजर करने के इक्विपमेंट हो, वो अलग टेबल में रखते हैं, राइट? और फिर उनके कस्टमर कौन से है वो अलग टेबल में होता है। तो बहुत सारे आपके इसमें, जैसे हमारे इसमें अभी तक दो ही या फिर हम तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी, हॉस्पिटल ब्रांच, राइट? सो अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, 60 70 80, मेरे इसमें 112 ऑब्जेक्ट्स है। तो 112 ऑब्जेक्ट में उनके बीच में बहुत रिलेशंस है, इसका उसके साथ उसका उसके साथ, मतलब वो सारे डिटेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो आपको भले ही अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब आप रियल टाइम में काम करते हो, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होते हैं, इसका उसके साथ उसका इसके साथ, तो कहाँ पे जाना है, क्या क्लिक करना है, किसके ऊपर रिलेशन बनाना है, वो भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। नाउ टू जस्ट शो what is the difference between master detail and a lookup relation, we have created one more object, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है हॉस्पिटल ब्रांच, राइट? सो सोनाली क्रिएट the tab for that hospital branch, or have Yes. you created? Yes, I'm creating. Create the tab for that hospital branch. All of you are well aware of this procedure, how to create object, how to create tabs, and how to assign that tab to, or how to allocate that tab to any particular application. ये ऑलरेडी हमें पता है, Yes. राइट? सो इट इज क्रिएटेड। Yes. हाँ, okay. Now in our this hospital, right? Create 2 3 fields over here for this hospital. How many fields it is there for hospital branch, that object? Mm,
Just click on new. You could see that how many fields are there. Hospital branch name, website, and facility. That's all. That's enough for time being. Okay. So now go to the patient object. Yes. क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को उनका सेंट्रलाइज ऑफिस ऑफिस भी हो सकता है, राइट? वो सेंट्रलाइज ऑफिस में वो बंदा कॉल भी कर सकता है, तो उसको पूछेगी कि आप कौन से इसमें विजिट करने वाले हो, या कौन से ब्रांच में विजिट करना चाहते हो, तो वो बोलेगा नहीं मुझे अकोडी जाना है, तो वो बोलेगी ठीक है अकोडी में आपकी अपॉइंटमेंट ये टाइम पे है। या वो बोलेगा नहीं मुझे चिंचवड़ में जाना है, तो वो बोलेगी नहीं चिंचवड़ में डॉक्टर आज नहीं है, वॉट एवर इट में भी, है ना? तो वो रिसेप्शनिस्ट को भी 1 मिनट में ही पता चल जाएगा सारा कहाँ पे है। तो go to that object manager inside the patient object. Yes. Go to the patient object. 1 minute. Yes. Create one field with master detail relation. With and किसके साथ करेंगे हम ये? हॉस्पिटल ब्रांच के साथ मास्टर डिटेल। मतलब वो रिसेप्शनिस्ट सिलेक्ट करने वाली है, क्योंकि वो पेशेंट बोलेगा ना मुझे पिंपरी में जाना है, अकोडी में जाना है, कहाँ पे जाना है, राइट? तो उसको सिलेक्ट करने के लिए वही पेज में, पेशेंट के ही पेज में, राइट? जैसे अभी हमने देखा कि पेशेंट जब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे हम, वो पेशेंट रिकॉर्ड करते समय वहीं पे एक डॉक्टर नाम की फील्ड आई थी, जिसमें से रिसेप्शनिस्ट सिलेक्ट कर पाई कि ये डॉक्टर के पास जाना है, राइट? फिर अभी वो ही उसी तरह से और एक फील्ड आएगी हॉस्पिटल ब्रांच, तो उसी में सारा हॉस्पिटल के ब्रांचेस ऑटोमेटिकली दिखेंगे, राइट? और वो वहां से उसको सिलेक्ट कर पाएगी कि अकोडी ब्रांच या कौन सी ब्रांच को उसको जाना है, राइट? So just click, try to create save, try to save this. So what is Here, populate the the message. huh? It cannot be create a master data relationship Yes, because yes. ये मैंने the जानबूझ objective. के आपको, यस यस यस, ये जानबूझ के मैंने ये करने के लिए बोला, जस्ट टू शो द एरर। ये एरर क्या बोल रहा है कि हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऐसे ऑब्जेक्ट पे नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने अभी बोला, अभी आपको एक चीज दिखाया था, जब मैं पेशेंट क्रिएट कर रहा था, राइट, उस टाइम पे मैंने डॉक्टर सिलेक्ट किया तो भी रिकॉर्ड बन रहा था लुकअप रिलेशन में, हाँ, और डॉक्टर सिलेक्ट नहीं किया तो भी रिलेशन बन रहा था, राइट? या रिकॉर्ड हम बना पा रहे थे, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहे थे, राइट? बट बट वही चीज मास्टर डिटेल में क्या है, मैंने आपको बोला कि lookup is a mandatory, lookup is a not required, or it's not a mandatory field, whereas master detail is a mandatory field. तो master detail में आपको डेटा डालना ही पड़ेगा, मगर now go to that Sonali, go to your this field, this object, sorry, application, go to the application and go to the patient object. Yes. Now here, this is your patient object. Do one thing, Sonali. Click on this recently viewed arrow beside, और सारे select करो all. Yes. Right? उसके बाजू में जो पिन का सिंबल है उसको क्लिक करो। हाँ, now it Yes. is selected.
ना उसी के ही लाइन में राइट हैंड साइड पे आपको ये दिख रहा है, एक कैलेंडर जैसे सिंबल, राइट, राइट हैंड साइड पे देखो, या फिर एक गियर आइकॉन, पेंसिल Yes. आइकॉन, हाँ उसके बाजू में, उसके बाजू वाला गियर आइकॉन पे जाओ, Yes. राइट, हाँ उसके एरो पे क्लिक करो, Yes. हाँ क्लिक ऑन दैट एरो एंड सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले, इसमें देखो सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले है नीचे, हाँ राइट, क्लिक ऑन दैट। अभी देखो अभी इसको चाहे तो एक बार क्रॉस करो, कैंसिल करो, मैं बोलता हूँ अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको क्रॉस करो, क्रॉस करो, कैंसिल इट, हाँ। नाउ Cancel. Sir. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये मेरा डॉग पेशेंट्स के 3-4 रिकॉर्ड है, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ पेशेंट का नाम ही देख पा रहा हूँ, राइट। मगर टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे हमने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक फील्ड बनाया था, या फिर फीस था, डॉक्टर शेयर, हॉस्पिटल शेयर, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स बनाए थे, राइट। तो मुझे देखना है, मुझे वो कुछ फील्ड्स यहाँ पे लाने हैं, तो वो फील्ड्स लाने के लिए क्या स्टेप्स है, सबसे पहले यहाँ पे ऑल पे जाना है, ऑल पे जाने के बाद ये पिन के ऊपर क्लिक करना है, राइट। पिन के ऊपर क्लिक करके ये जो गियर आइकॉन है, सोनाली गो टू दैट गियर आइकॉन, हाँ उसके Yes. बाजू वाला जो एरो है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। नाउ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही फील्ड है, राइट, पेशेंट नेम, वही हम देख पा रहे हो, और ये जो बाकी के अवेलेबल फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी हम यहाँ पे फील्ड्स लेते हैं, एक तो डॉक्टर डालो सोनाली, एक तो डॉक्टर सिलेक्ट करो, गो डाउन, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर सिलेक्ट करो, राइट। और Yes. हॉस्पिटल ब्रांच जो और एक नहीं वो तो बना ही नहीं अभी तक, राइट, ओके, नॉट एन इशू, सेव, या फिर और एक दो फील्ड्स डाल दो इसके अंदर, फीस डाल दो, और 2-3 फील्ड डाल दो, Yes. एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। नाउ हियर स्टूडेंट यू कुड सी देयर आर जो जो फील्ड्स हमने सिलेक्ट किए थे, फील्ड्स मतलब सिंपली कॉलम्स, वो सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो पेशेंट के लिए, राइट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जो मेरा सेकंड कॉलम है डॉक्टर, सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, राइट, उसको डॉक्टर का नाम है क्या कुछ? नो, देयर इज नो डॉक्टर नेम फॉर द फर्स्ट पेशेंट, पर सेकंड एंड थर्ड के लिए हमने कुछ पेशेंट लिया है, राइट, कुछ डॉक्टर का नाम लिया है, कुछ डॉक्टर सिलेक्ट किया है। ये क्यों कर पाए हम? बिकॉज ये पेशेंट और ये डॉक्टर के बीच में कौन सा रिलेशन है? लुकअप रिलेशन है, राइट, कौन सा रिलेशन है? लुकअप, इसीलिए हम ये कर पाए। ओके, नाउ मुझे कौन सा रिलेशन बनाना है? डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन अभी किसके साथ बिठाना है? हॉस्पिटल ब्रांच के साथ रिलेशन करना है, बट वो रिलेशन कौन सा करना है मुझे? आई डोंट वांट टू हैव अ लुकअप रिलेशनशिप, आई वांट टू हैव अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, राइट। नाउ टेल मी, अभी तक रिलेशन नहीं बनाया है फॉर एग्जांपल मैंने, राइट, हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे बट उसने एरर फेंक दिया। एरर क्यों मारा उसने? क्योंकि मास्टर डिटेल इज अ मैंडेटरी फील्ड। अभी अगर मैं पेशेंट का रिलेशन बना रहा हूं किसके साथ? हॉस्पिटल ब्रांच के साथ, वो भी मास्टर डिटेल है, तो वो मैंडेटरी बनेगा, राइट। सो कंसीडर हियर मैंने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना लिया, राइट। जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर का कॉलम है, वैसे ही और एक कॉलम है, जस्ट इमेजिन, राइट, कौन सा कॉलम है? दिस हॉस्पिटल ब्रांच। तो ये हॉस्पिटल ब्रांच है, राइट, तो उसमें क्या डेटा आएगा अभी इन पेशेंट के लिए? नथिंग, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, आई विल क्लियर यू। Wait, sir. हाँ, जस्ट अ मिनट, आई एम आल्सो ओपनिंग दैट टेबल।
students, can you see my screen? Can you see my screen, student? Sonali, my screen is coming. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. So there is one पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का टैब, पेशेंट ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह से है, मैं यहाँ पे जस्ट एक उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। सो पहला फील्ड क्या है मेरा, पेशेंट, राइट। सेकंड वन इज योर डॉक्टर, राइट। अभी मुझे बिजनेस के तरफ से, बिजनेस मीन्स क्लाइंट, जो हम कंपनी के लिए काम करते हो, मैं सपोज इन्फोसिस, आई एम वर्किंग फॉर इन्फोसिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड फॉर इन्फोसिस, इन्फोसिस का कोई क्लाइंट रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का क्लाइंट है लेट्स से इंटेल, या फिर व्हाट एवर इट मे बी, जस्ट, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। इन्फोसिस के लिए इंटेल का हो गया बिजनेस, या फिर क्लाइंट, या फिर कस्टमर। सो बिजनेस के तरफ से हमें कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकता है, राइट। सो उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पेशेंट नेम चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, और मुझे और एक ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन देना है, उसका नाम है हॉस्पिटल ब्रांच, राइट। तो ये मेरा हॉस्पिटल ब्रांच, बट उन्होंने मेरे को बोला कि ये हॉस्पिटल ब्रांच का रिलेशन है वो मैंडेटरी होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर, कोई भी एंट्री करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, तो ये हॉस्पिटल ब्रांच जो फील्ड है वो मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर मास्टर डिटेल होना चाहिए, राइट। सो नाउ द थिंग इज दैट, हमारे इसमें एक पेशेंट है ना, सपोज राम कुमार, या फिर व्हाट एवर इट मे बी, या फिर रमेश, ओके, या सेकेंड वन इज लेट्स से केतन, है ना, ये कुछ भी नेम हो सकते हैं पेशेंट के, राइट। सो यहाँ पे हमने ये रिलेशन तो दी है, राइट। यहाँ पे मैंने डॉक्टर भी दिया है, राइट। डॉक्टर एक्स वाई जेड इज माई डॉक्टर, राइट। या दूसरे इसमें सपोज डॉक्टर है मेरा पी क्यू आर, ओके। नाउ नाउ द थिंग इज दैट मुझे हॉस्पिटल ब्रांच देना है यहाँ पे, और ये हॉस्पिटल ब्रांच कौन सा है, मैंडेटरी। मगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, कुछ रिकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है, बट मैंने क्या बोला है कि दिस इज मैंडेटरी फील्ड, तो इस फील्ड में कुछ डेटा ही नहीं है अभी तक, राइट। तो मैं अगर इसमें रिकॉर्ड, इसको रिलेशनशिप बिठाना चाहूंगा तो भी मैं उसमें नहीं बिठा सकता हूं, क्यों, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड है, उसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी बने बनाए हैं, मुझे नया उसमें कॉलम डालना है, राइट। रिकॉर्ड मेरे पास ये दो रिकॉर्ड बने हैं, राइट। उसमें मेरे टेबल में पहले ये वाला कॉलम नहीं है अभी तक, मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, राइट। बस उस कॉलम का कंडीशन क्या है, मगर उस कॉलम में हर एक इसका वैल्यू होना चाहिए, बट अभी तक हमने वो कॉलम ही क्रिएट नहीं किया है, तो इस रिकॉर्ड के लिए कुछ वैल्यू आ सकता है क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? देखो, ये वाला रिलेशनशिप लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि ये मैंडेटरी फील्ड है। मैंडेटरी फील्ड मतलब क्या, कि इसमें हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए, अगर इसमें वैल्यू नहीं है, वैल्यू होनी ही चाहिए, तो भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम, बट ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, right? So in that case, it's not possible to create such a master detail relationship. So what we will do now here, we will delete all the records. There is alternate way also. Alternate way भी है, अगर record है भी तो उसमें master detail relationship कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, but just for a time being इतना याद रखो कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, राइट। जितना मैंने एक 10 मिनट से या 15 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका समरी यही है कि अगर ऑब्जेक्ट में डेटा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है, राइट, तो उस केस में हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते। There is alternative way that I will explain later. So Sonali, please share your screen. Yes, sir. Sir, wait for a minute. Okay.
Yes, it is visible. Yes, yes. Now delete all the patient record and then create this. Delete all the patient record. Now, Yes, how sir. to delete the records? Go to that application, go to that object. For every record, there is small arrow. Edit, delete. Delete all the record and create one master detail relation. Yes, I have deleted all the Now create records. master detail. Now create the master detail relation. Yes, sir. Select here master data relationship as a data type. Then next, related to object. Hospital branch object select. Then next, you can change your field label, but I have keep as it is. Then next, save. Right. Now in this case, the relationship will be created. Now go to the, is it created? Yes, Now go to that patient object and try to create one patient without, no, first of all, try to create or create one or more, branch. one or two hospital branch. Yeah, record. Yes, Created. yes, Now create. Now we have created hospital branch record. That's all. Not nothing else. Just now go to this patient object and try to create one patient object without hospital branch and without doctor. Let's try to see what okay. will happen.
But hospital branch is mandatory field. Hospital branch field is mandatory field. Yes, yes, we have to. So see student, अभी हमने दोनों रिलेशन है आपके सामने, राइट? दैट इज दिस, what I mean to say, lookup and master detail, out of which lookup is not mandatory, whereas master detail is mandatory. Now if you can select master lookup field, then it will save the record. एक हॉस्पिटल ब्रांच सिलेक्ट करो सोनाली. Lookup field is your doctor field. So here it is not symbolical representation, that is star, red star. It is not mandatory. And hospital branch, it is a mandatory field. This is your master detail relationship. So I have selected Pimpri branch and save. Now the record will save. So this is what the difference between lookup and master detail, right? Now you have to create one more object today, that is hospital branch, right? And you need to establish the lookup relation with doctor, and master detail relationship with this object. What I mean to say, hospital branch. Okay. That means So in lookup field, here we can't select here a doctor, but record is saved, successfully saved. And in hospital branch, that is your master detail relationship, it is a mandatory field. yeah. So I hope it is clear to everybody. So do this assignment today, and Sonali, stop the recording. And one of the Yeah. student having some issue. Stop the Yes, sir. recording. Huh. Yes, So sir. Sonali, try to sort out his problem. Otherwise, look.